साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थाम दे यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं चलूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. But grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Hello, good morning to all of you. हेलो, आप सभी को गुड मॉर्निंग। Welcome all of you once again to this Sunday worship service in Jesus' matchless name. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में फिर एक बार इस इतवार के आराधना में आपको हम स्वागत करते हैं। I hope you all are doing fine, you all are well, आशा करता हूं कि आप सब भले हैं and we welcome all of you to participate and join us as we meditate on God's word. और
आप सबको हम स्वागत करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और परमेश्वर के वचन पे अध्ययन करें। So today we will see something from the book of Psalms. तो आज ज़बूर की किताब, भजन संहिता का किताब जो है, उसमें से आज हम कुछ देखेंगे। And the topic for today will be the rod and staff. आज का विषय जिस पे हम चर्चा करेंगे वह है सोठे और लाठी। So before that we will have a short prayer. उसके आगे हम छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। God, we surrender all the viewers into your hands. We surrender all the watchers who are watching with us and participating with us, Lord. We ask that your Holy Spirit might guide us, speak through us, and speak to the viewers and enlighten us, Lord, and help us to be used by you and help us to be your staff in this world. We commit everyone into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. आमीन। We will begin with one verse, Psalms 23, verse 4. हम भजन संगीता उसका 23वां अध्याय 4था पद से शुरू करेंगे। It says, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। Now, in those times, in biblical times, the valley was a place of suffering, it was a place of warfare. अब उस समय हम जब देखते हैं, तराई का जो स्थान है वह एक युद्ध का स्थान और एक कठिनाई का स्थान कहला जाता था। For example, in Genesis 14:17, there are two groups of kings who make war with each other, and it happens in a valley. जैसे कि उदाहरण के तौर से हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब उसका 14 अध्याय को अगर पढ़ेंगे तो वहाँ दो राजा थे जिनका युद्ध होता है और यह भी एक घाटी के मध्य में होता है। It is believed that when David was running from Absalom, he was fleeing and running through a valley. यह विश्वास किया जाता है कि जब दाऊद अब्सलोम से भाग रहा था तो वह एक तराई के बीच से होकर भाग रहा था। In 1 Samuel 17, when David was about to fight with Goliath, the war was about to take place in a valley. और फिर हम देखते हैं पहला सामुएल उसका 17 किताब में कि दाऊद का साथ में जब अब्सलोम का युद्ध होने वाला था तो वो भी एक तराई के बीच में होने वाला था। So valley is a place where there were many wars that took place in the Bible. तो हम देखते हैं कि घाटी एक ऐसे स्थान है जहाँ पे बहुत सारे युद्ध बाइबल में देख सकते हैं। So it represents suffering and time of warfare. तो यह जो है एक युद्ध का समय और एक दुख का समय को जताता है। Now in our life also there must be times when we go through a valley. तो हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि कई बार ऐसा समय होता है कि हम एक तराई के मध्य से होके गुजरते हैं। Even now the whole world seems to go through a valley. आज भी हम देखते हैं कि सारा जगत जो है एक तराई के मध्य से जैसे होके गुजर रहा है। There is fear and it seems as the world is going through the valley of death. सारे जगहों में देखते हैं कि एक भय समा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि मौत के घाटी के मध्य से गुजरते हुए जा रहे हैं। Now there are valleys in our personal life, in the believer's life. हम देखते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी कई ऐसे घाटी पाए जाते हैं। Now God wants us to be used as an instrument and he wants to exercise his authority through us. परमेश्वर हमें एक माध्यम के तौर से इस्तेमाल करना चाहता है और वो चाहता है कि उसका अधिकार हमारे द्वारा प्रयोग किया जाए। So notice there are two things here, rod and staff. तो ध्यान रखिए यहाँ पे दो बातें हैं, सोठे और लाठी। These two things you need to remember, these two words is the rod and the staff. ये दो शब्द आप हमेशा याद रखिए, सोठे और लाठी।
God cannot use you as his rod if you do not offer him as his staff. परमेश्वर आपको एक सोठे के समान इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक आप उसे एक लाठी के तौर से अपने आप को नहीं सौंपते हैं। In the Bible, and in those times, the rod was specially for the enemies and the staff was for the children. उस समय हम देखते हैं बाइबल के समय में कि ये जो सोठे जो था वो दुश्मनों के लिए प्रयोग किया जाता था और छड़ी जो है वो बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता था। What do I mean by this is when a shepherd would have these two instruments, the rod was specially for the wild animals. इससे मैं समझाना चाहता हूँ वो यह है कि जो चरवाहा था उसके पास भी एक सोठे और लाठी रहता था और जो सोठे जो रहता था वो जंगली जानवर के लिए प्रयोग किया जाता था। But the staff was used for the sheep. मगर जो छड़ी है वो भेड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। Now we have to understand this, that we have to offer ourselves as a staff in God's hand. अब यह बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर के हाथ में अपने आप को एक छड़ी के समान सौंपना है। In those times, the staff had a U shape and it was curved at the top. उस समय में जो छड़ी था वो ऊपर के हिस्सा में एक यू के समान तिरछा रहता था। Because the staff is for you, the staff is for the people, and God or the shepherd uses to bring the people to himself. और यह छड़ी जो है वो लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है परमेश्वर के द्वारा ताकि वे वापस भटके हुए लोगों को अपने ओर खींचे। But the rod had nails and at the top of it to use it as a weapon for wild animals. मगर ये सोठे जो था उसके ठीक ऊपर के हिस्सा में एक खीला रहता था जिसे जंगली जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। It represents the authority that comes from the cross. और ये खीला जो है क्रूस से आया हुआ अधिकार को दर्शाता है। It protects us from wild animals. यह हमें जंगली जानवरों से बचाता है। So, God's right hand represents the staff. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का दाहिना हाथ जो है वो लाठी को दर्शाता है। But God's left hand represents the rod. मगर परमेश्वर का बायां हाथ जो है वो सोठे को दर्शाता है। So, God's right hand has the staff and God's left hand has the rod. तो परमेश्वर के दाहिना हाथ में सोठे है और उसके बायां हाथ में छड़ी है। Because in the Bible, God's right hand represents grace and mercy. क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर का दाहिना हाथ अनुग्रह और दया को दर्शाता है। God's left hand represents judgment and justice. परमेश्वर का बायां हाथ वो न्याय को दर्शाता है। So, in the Old Testament, we saw God's left hand. तो पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर के बाएं हाथ को And in the New Testament, we see God's right hand. और नया नियम में हम परमेश्वर के दाहिने हाथ को देखते हैं। Because God's word means his left hand. क्योंकि परमेश्वर का वचन का मतलब है उसका बायां हाथ। But the word Lord means his right hand. मगर प्रभु जो शब्द है उसका मतलब है दाहिना हाथ। So God's left hand is holding the rod, which means chastisement or judgment. तो परमेश्वर का बायां हाथ जो है वो सोठे को दर्शाता है जिसका मतलब सुधार करना को दर्शाता है। God's right hand is holding the staff which we pull the sheep. It represents grace. और परमेश्वर का दाहिना हाथ जो है वो उस छड़ी को दर्शाता है जो मेमना को अपने तरफ में खींचता है, उसे हम अनुग्रह कह सकते हैं। That is why when we hold the Bible like this, our left hand is in the Old Testament, but our right hand is towards the New Testament. इसलिए हम देखते हैं जब हम बाइबल को पकड़ते हैं तो हमारा बायां हाथ जो है वो पुराने नियम की ओर रहता है और हमारा दाहिना हाथ जो है वो नया नियम की ओर रहता है। Because in the left hand, we always saw God's judgment in the Old Testament, only his judgment. क्योंकि बाएं हाथ में
हम हमेशा देखते हैं कि परमेश्वर के न्याय को हम बार बार पढ़ते हैं। So, in the right hand, we see the New Testament where God reveals His grace through Jesus. और दाहिने हाथ में हम देखते हैं नया नियम में कि परमेश्वर अपना अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा दर्शाता है। So, the left hand of God represents the law, the first 5 books of the Bible. तो परमेश्वर का बायां हाथ जो है वो 5 उंगलियां जो है उसमें वो दर्शाता है वो 5 किताब जो न्याय का पुस्तक बाइबल में हम कहते हैं। So, we saw God's discipline and judgment. तो हम परमेश्वर का अनुशासन को और उसका न्याय को वहाँ देखते हैं। But now in the church age, we see God's right hand, which represents the fivefold ministry of the church. मगर आज इस कलीसिया के युग में हम परमेश्वर के दाहिने हाथ में देखते हैं और उसमें 5 जो उंगलियां हैं वो दर्शाता है परमेश्वर का अनुग्रह को और उसका सेवकाई को। So, the devil, he only knows God, he does not know Lord. तो शैतान जो है वो केवल परमेश्वर को पहचानता है मगर प्रभु शब्द का मतलब वो नहीं जानता। That is why when God created Adam, we see the word Lord over there. इसलिए जब परमेश्वर ने आदम का सृष्टि किया तो वहाँ पे वो प्रभु शब्द को पाते हैं। But when the snake came in Genesis chapter 3, the snake did not use the word Lord. The snake used the word God, God, God. और हम देखते हैं उत्पत्ति का 3 अध्याय में जब सांप वहाँ आता है तो वहाँ पे प्रभु शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वहाँ पे परमेश्वर का इस्तेमाल किया जाता है। So before Adam knew Lord, but the Satan came and introduced God. तो हम देखते हैं कि पहले आदम प्रभु को पहचानता था मगर सांप आके परमेश्वर का परिचय कराता है। Because Satan after the fall, he experienced God, the judgment side of God. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आदम का पतन के बाद में वो अनुभव किया परमेश्वर को और उसके न्याय को। So he came and introduced God and Adam saw the judgment of God. तो इसलिए हम कहते हैं कि शैतान आके परमेश्वर का परिचय करवाता है, इसलिए आदम जो है परमेश्वर का न्याय को देखता है। So we see the word God represents the left hand of the judgment, while the word Lord represents the right hand, mercy and grace. तो हम देखते हैं कि जो बायां हाथ है वो परमेश्वर को दर्शाता है, न्याय को दर्शाता है और दाहिना हाथ जो है वो प्रभु शब्द को इस्तेमाल करता है, अनुग्रह को दर्शाता है। So that is why God is holding the rod in the left hand and the staff in the right hand. इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो बायां हाथ में सोठे को धरे रखा है और दाएं हाथ में छड़ी को धरे रखा है। We will see a verse now from Exodus 4:2-4. और एक वचन को हम ध्यान देंगे, वो निर्गम की पुस्तक उसका 4 अध्याय 2 से लेके 4 पद तक। It says, God told Moses, what is in your hand? And then Moses says that it is a rod. And God says to cast it in the ground. And when he cast it on the ground, it became a snake. And the Lord said to Moses, put your hand and take the snake by the tail. And when he put his hand, the snake again turned back into a rod. यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? वो बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति करे कि तुम्हारा पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। We see here
Moses has a rod in his hand. He throws it and the rod turns into a snake and then it turns back into a rod. तो हम देखते हैं कि मूसा के हाथ में यहाँ पे एक लाठी है और उसे जब वो फेंकता है तो वो सांप बन जाता है और उसके बाद जब पूंछ से उसको पकड़ता है तो वापस वो सांप जो है लाठी बन जाता है। Why the snake turns into a rod? क्यों एक सांप जो है वो लाठी बन जाता है? Notice in the book of Genesis, the snake is controlling the man, but in the book of Exodus, the man is controlling the snake. उत्पत्ति का किताब में अगर आप ध्यान देंगे तो वहाँ देखते हैं सर्प जो है वो मनुष्य को कंट्रोल कर रहा है, मगर अगर आप उससे निर्गम की पुस्तक में पढ़े तो एक मनुष्य यहाँ सर्प को कंट्रोल कर रहा है। Why? Because the snake is a symbol of Egypt. क्यों? वो इसलिए है क्योंकि सर्प जो है वो मिस्र का एक चिन्ह है। When Pharaoh had a cap or a crown type of cap, there was a symbol of the snake. हम देखते हैं कि फिरौन के माथे में जब एक मुकुट रहता था तो उस मुकुट में एक सर्प का चिन्ह रहता था। It represented Egypt, वो मिस्र को दर्शाता था। while the rod represented the authority over Egypt. और ये जो सोठे हैं वो उस अधिकार को दर्शाता है जो मिस्र के ऊपर में रहता था। Moses is going to have authority over this nation. और ये दर्शा रहा है कि मूसा जो है वो इस राज्य के ऊपर में अधिकार करेगा। Remember, Moses had a rod because Moses was a staff. याद रखिए मूसा के पास में एक लाठी इसलिए था क्योंकि उसने अपने आप को एक छड़ी बनाया। When you make yourself a staff, you will have a rod. जब आप अपने आप को एक छड़ी बना देंगे तो आपके पास एक लाठी होगा। Remember, God and Satan oppose each other. याद रखिए परमेश्वर और शैतान एक दूसरे के विरुद्ध है। And God is holding the staff on the right hand and the rod in his left hand. और परमेश्वर उसके दाहिने हाथ में छड़ी को धरे हुआ है और उसके बाएं हाथ में वो सोंठे को या लाठी को धरे हुआ है। When you are towards the right hand of God, then for the devil you are on his left. You are a danger to him. जब आप परमेश्वर के दाहिने हाथ में होते हैं तो शैतान के आप बाएं हाथ में होते हैं, उसके लिए एक विपत्ति का कारण बन जाते हैं आप। But if you are towards the left side of God, then you are on the right side of the devil. You are for the devil. मगर आप अगर परमेश्वर के बाएं हाथ में रहते हैं तो आप शैतान के खिलाफ नहीं मगर उसके साथ रहते हैं। Remember, my left is your right. ये याद रखिए मेरा बायां आपका दायां है। So Moses was the staff of God. This is why he was the left hand of the devil. तो हम देखते हैं मूसा जो है वो परमेश्वर के लिए एक छड़ी था, इसलिए वो शैतान का बायां हाथ के जैसा था। If you want a rod in your hand, you have to become a staff in God's hand. अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ में भी एक लाठी आए तो आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथों में एक छड़ी बन के रहना पड़ेगा। David was a rod, had a rod in his hand because David was a staff in God's hand. दाऊद के हाथ में भी एक लाठी पाया गया था क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में एक छड़ी के तौर से समा दिया था। That is why we see the staff is curved at the top because it represents humility. इसलिए हम देखते हैं कि छड़ी जो है जो चरवाह इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर के और जरा तिरछा हुआ है, यह नम्रता को दर्शाता है। But if you see the rod in those time, the rod was straight. It represents to be firm or to be established. मगर लाठी को अगर हम देखते थे उस समय तो वो बिल्कुल जो है सीधा रहता था, यानी कि ये अटल रहने के बारे में कह रहा है और दर्शा रहा है। For you to be a rod, you have to become a staff. अगर आप भी एक लाठी बनना चाहते हैं तो आपको एक छड़ी बनना जरूरी है। That is why Moses was said to be one of the most humble person. इसलिए ये कहा जाता है कि मूसा सबसे ज़्यादा एक नम्र व्यक्ति था। When Jesus came to this earth, he lowered himself and became a staff.
जब यीशु इस पृथ्वी में आया तो उसने भी अपने आप को नम्र किया और एक छड़ी बन गया। But when he's coming back, he's coming with a rod in Revelation. मगर प्रकाशिक वाक्य में हम पाते हैं जब वो वापस आएगा तो वो एक लाठी के समान वापस आएगा। For you to become a rod, you have to become a staff. अगर आप लाठी बनना चाहते हैं तो आपको भी छड़ी बनना ज़रूरी है। Remember, in those times, to walk, you needed a staff. याद करिए उस समय में जब पैदल जाना हो तो एक छड़ी रहना ज़रूरी था। For God to work and God to walk in this world, He also needs a staff, that is a human being. और परमेश्वर अगर इस संसार में कार्य करना चाहता है तो उसे भी एक छड़ी का ज़रूरत है और वो छड़ी है इंसान। So God needs a person who will become His staff so that God can show His rod. तो परमेश्वर ऐसे एक व्यक्ति को चाह रहा है जो एक छड़ी बन के अपने आप को उसे सौंपेगा ताकि वह अपना लाठी को दिखा पाए। That is why Jesus is called in the Old Testament as a branch. इसलिए यीशु मसीह को पुराने नियम में एक डाली के समान दर्शाया गया है, Because a staff is basically a branch cut off from the tree. क्योंकि हम देखते हैं एक छड़ी जो है अगर उसे ध्यान से देखें तो एक पेड़ का एक कटा हुआ डाली को कहते हैं। That is why in the Old Testament the word for staff also means a tribe. तो इसलिए पुराने नियम में हम देखते हैं यह शब्द छड़ी को एक कुल को भी दर्शाया गया है। It also represents genealogy, your lineage from where you are coming from. और यह वंशावली को भी दर्शाता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। That is why Jesus was from Nazareth. Nazareth means branch. इसलिए यीशु देखिए वो नाजरत से था और नाजरत का मतलब होता है एक डाली। The first name for Christians was branches. पहला नाम जो ईसाई लोग के लिए इस्तेमाल किया गया था वो है डालियाँ। That is why Jesus said, "You are the branches." इसलिए यीशु ने कहा कि आप डाली हो And we are connected to Jesus. और हम यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। So God wants to use us as His staff so that He can exercise and show His authority through us. तो परमेश्वर चाहता है हमें इस्तेमाल करने एक छड़ी के समान ताकि वो हमारे माध्यम से अपना अधिकार दिखा सके। So we need to know three things. तो हमें तीन बातें को ध्यान से रखना है। The first thing is we have to offer ourselves to Him. पहले बात यह है कि हमें अपने आप को उसे सौंप देना है। Remember the staff, it represents submission, humbleness. और देखिए जैसे मैंने कहा कि छड़ी जो है वो नम्रता को दर्शाता है। You cannot become a rod without first becoming a staff. जब तक आप छड़ी नहीं बनेंगे आप एक लाठी नहीं बन सकते। When you humble yourself, then God lifts you up. जब आप अपने आप को नम्र बनाएंगे तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। Second thing we need to know our spiritual lineage, from where we are coming from. दूसरी बात यह है हमें जानना जरूरी है कि हमारे वंशावली आत्मिक वंशावली कहाँ से है, हम कहाँ से आ रहे हैं। We need to know that we are the branches, Jesus is the vine, where we are connected to. हमें यह जानना जरूरी है कि हम डाली है और यीशु जो है वो डाकलता है। हमें यह जानना है कि हम कहाँ पे जुड़े हैं। Because remember, in order to go to a place, you need to know from where you are coming from. यह याद रखिए कि आप अगर कहीं जाना चाहते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। If you want something to happen in your life, you need to know that you are coming from the spiritual lineage of Jesus. अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसे हो तो यह आपको जानना जरूरी है कि आप यीशु के आत्मिक वंशावली के द्वारा आ रहे हैं। Remember, we fight a battle by knowing where we are coming from. Our identity, we need to know. देखिए हम एक युद्ध लड़ रहे हैं और यह युद्ध में हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा परिचय क्या है, हम कहाँ से आ रहे हैं। And lastly, we have to exercise our authority. और आखिर में हमें अपना अधिकार का प्रयोग भी करना है। So when you become the staff of God, you will become the rod to the devil. जब आप परमेश्वर के लिए एक छड़ी बन जाएंगे तो शैतान के विरुद्ध में आप एक लाठी बन के खड़े रहेंगे।
Moses was a staff for God, so he became a rod to Pharaoh. मूसा परमेश्वर के लिए एक छड़ी बन गया, इसलिए फिरौन के लिए वो एक लाठी बन के उसके विरुद्ध में काम किया। David became a staff for God, so he became a rod to Goliath. दाऊद अपने आप को छड़ी के समान परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, इसलिए वो गोलियत के सामने में एक लाठी बन के खड़ा था। So God is still searching for a staff where he can put his hand and rest his hand on the staff. आज भी परमेश्वर खोज रहा है ऐसे एक छड़ी को जहाँ पे वो अपने हाथ को रख सके। Because God's hand is his power, but he wants a staff or a human being. क्योंकि परमेश्वर का हाथ सामर्थ को दर्शाता है, इसलिए वो ऐसे कोई व्यक्ति को खोज रहा है। And so this humility is the key. तो यह नम्रता जो है यह एक चाबी है। And so nowadays it's very difficult to find humble people. You need to humble yourself. इसलिए आज हम देखते हैं कि एक नम्र व्यक्ति को खोजना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए हमें अपने आप को नम्र बनाना ज़रूरी है। And nowadays everyone wants to be the teacher. No one wants to be the student. और आजकल हम देखते हैं कि हर एक इंसान जो है वो शिक्षक बनना चाहता है, छात्र कोई नहीं बनना चाहता। Everyone wants to perform. No one wants to be the audience. हर कोई आके कुछ दर्शाना चाहता है, दिखाना चाहता है, मगर एक स्थान में खड़े होके या बैठ के देखना नहीं चाहता है। Remember, Jesus being God, he humbled himself. याद रखिए, यीशु परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को नम्र किया। The first lesson we learn from Jesus is humbleness. पहला शिक्षा हम यीशु से जो पाते हैं वो है नम्रता। And so may you become a staff and live a life where God can use you. तो यह मेरा प्रार्थना है कि आप एक छड़ी बने परमेश्वर के लिए, ताकि वो आपको इस्तेमाल कर पाए। And so this is my prayer that this teaching might be settled down in your mind. और ये भी मेरी प्रार्थना है कि आज जो कुछ हमने सीखा यह आपके मन में और आपके सोच विचार में बस जाए। May God bless this word. परमेश्वर इस वचन पे आशीष करे। Shall we look to God and pray? हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तू आज हमें चुना, और धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के माध्यम से हम तुझे जानते हैं। हमारा ये प्रार्थना है कि हमें सहायता कर नम्र बनने में, ताकि प्रभु तू अपना राज्य के लिए हमें इस्तेमाल कर सके। हम चाहते हैं कि सारा महिमा तुझे मिले, और प्रार्थना यह भी करते हैं जो दर्शक इस समय में इस वचन को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वचन के माध्यम से ये लोग और करीब आ सके और जुड़ सके और तुझे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके, संसार से अपने नज़र को हटा के तेरे कार्य में अपने नज़र को रख सके, गाड़े सके। इसी तरह से हमारा सहायता कर, ताकि हम मिल के एक साथ तेरी महिमा और वंदना करते रहें। यीशु मसीह के नाम से दुआ चाहते हैं, आमीन। Thank you. धन्यवाद। Have a great week. आपका सप्ताह शुभ हो।